to him again and again. Good evening, ladies and gentlemen. Honored guests, respected director ma'am, respected principal sir, teachers, and my dear friends. I am Niharika Rana with my co-host Abha Khan. Welcome to Annual Day celebration of Jim Pioneer School 2025-26. We are going to present a very special celebration, Rama Utsav, inspired by a timeless epic, Ramayana, a story of courage, devotion, dharma, to continuously inspire generations. Absolutely, Niharika. The Ramayana is not just a story, it is a guide that teaches us values like truth, love and bravery. Today, we will relive this journey of Lord Rama, Lakshmana and Hanuman. Let us seek his blessings for a joyful and successful celebration today. विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संगीत में प्रभाकर डिग्री वायलिन और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका से गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, जो उनकी उत्कृष्टता और ज्ञान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने समाज के हित में भी बहुत योगदान दिए हैं। नशा मुक्ति अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत अभियान के लिए उनका प्रयास सराहनीय है। हमारे लिए यह सौभाग्य है कि हमारे संस्था के नेतृत्व ऐसे महान शिक्षाविद कर रहे हैं। पूरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ मैं डॉक्टर जगदीश पांडे जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। Honorable Deputy State Project Director, Education Department, Government of Uttarakhand. Highly committed, left no stone unturned, always go to extra miles. Dr. Rakesh Kalaji, Honorable Principal, Billfield School. Mr. Purushottam Bhatt ji, National President, Apna Parivar Sangathan. Multitasking, engaged, industrious, eyeball of the society. Dr. Meenakshi Soti, Honorable Principal, Doon Heritage School. Or dynamic personality, firm hand, stout-hearted, Mr. Dinesh Joshi ji from PWD and Captain Joshi ji. Praiseworthy parents, oh inspiring audience, venerable media person, galaxy of intellectuals, respected teachers, principals of renowned schools of Dehradun. Go-getting firm hand full of beans, alive and well, high-spirited, dazzling children. It is indeed an honor and privilege for all of us that Mr. Pradyuman Rawat ji, Honorable Deputy State Project Director, Education Department, Government of Uttarakhand, has blessed us with his valuable commitment and precious time. If I talk about our guest of the day, he is highly devoted for helping the vulnerable people as well as improving the life of individuals, families, communities and societies. We are truly fortunate to have such great personality among us today on this special day. With great honor and humble pleasure, on behalf of staff, students and management, I emanate our thanks a billion to you, dear sir, for sparing your most valuable time. Auspicious occasion of annual day celebration of Jim Pioneer School. I extend a warm welcome, hold in high esteem, a big thank, and express our debt of gratitude to the entirety of this distinguished gathering. You have all spared your top of the range time out of your busy schedule and have glorified this crowning glory occasion by your warm-hearted, generous presence. We truly feel deeply honored and perceive ourselves disparately, profoundly sunshine by your reverent presence. We truly cover ourselves with glory under the umbrella of Almighty God.
On this magnificent occasion, I honestly appreciate the attempts made by all our hard-working industrious students who have truly nerves of steel, fought tooth and nails for accomplishing this event. Many, many blessings to all my loving children. Many, many congratulations to you. Many, many blessings always. On this propitious hour, I also take this opportunity to appreciate the concern, to appreciate the concentration of all our hard-working, workaholic teaching and non-teaching staff. I appreciate the parents who are always there to encourage the children and stand 24/7, time after time, hour after hour, shoulder to shoulder with us. I am beyond grateful. Your support means the world. If I talk about CBSE class 12th and 10th board examination result, I am truly carving a space to recognize the performances of these children in powerful way of saying that may the Almighty God bless you all. Our child Vaishnavi Saini, students of class 12, got 97.8% marks and topped the score in class 12 board examination. Many, many blessings, many, many congratulations to our child. You can also see the second and third position. If I talk about class 10th board result, our child Vaishnavi Thapliyal got 96.2% marks and topped the school in class 10. And you can also see the other students' marks who got second and third position. आज के इस रामोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हैं हमारे प्रिय मित्र भी हैं हेमेंद्र नेगी जी, जो कि डायरेक्टर सुभाष चंद्र बोस एकेडमी, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सब पत्रिका आए हैं, मैम आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच पधारे हैं सुभाष चंद्र बोस एकेडमी के ऑनरेबल प्रिंसिपल धर्मवीर श्रीवास्तव जी, आप सब पत्रिका आए हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस रामोत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के जीवन से शिक्षा लेकर बच्चों और सभी को अपने जीवन में सत्य, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता अपनाना सिखाना है। इसके साथ ही माता पिता और बड़ों का सम्मान, करुणा, विनम्रता और सही निर्णय और समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी का महत्व समझाना है। हम जिम पायनियर स्कूल में विद्यार्थियों को थिएटर सिखाते हैं, नाटक करने की कला सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आज आप देखेंगे कि जो हमारे टीचर्स ने बच्चों को थिएटराइजेशन सिखाया है, उसका रिजल्ट है कि बच्चे यहाँ पर अभिनय करेंगे और बहुत अच्छी प्रस्तुति आप सभी के सामने देंगे। बच्चों को हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, मंच पर बोलना, प्रस्तुतिकरण सिखाते हैं, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो जीवन में तरक्की करते हैं। बच्चों को हम म्यूजिक, सिंगिंग और डायरेक्शन सिखा रहे हैं, जिससे बच्चे खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। ये नाटक का डायरेक्शन किस तरह से होगा, इस प्ले का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा। इसमें भी प्रतियोगिता हमने आयोजित की विद्यालय में, जिससे बच्चों की भाषिक प्रखरता दिख रही है, स्मरण शक्ति बढ़ी है और वाक कौशल का एक अनुपम संगम देखने को मिला है। पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी में बच्चों को आत्मविश्वास के साथ मंच पर अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चों को हम सरल आसन, प्राणायाम और ध्यान सिखाते हैं। इस नियमित योग अभ्यास से विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, मन की शांति और एकाग्रता में अच्छा सुधार देखा गया है। हमारे विद्यार्थियों ने जशन मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून में आयोजित कैलीग्राफी, राइटिंग, ड्राइंग और सैलेड मेकिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीते। ये हमारे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है।
विद्यालय में 7 स्मार्ट क्लासेस लगाई गई हैं। आप देखेंगे विद्यालय में 60 स्मार्ट क्लासेस इस साल लगाई गई हैं। अब बच्चे वीडियो, ऑडियो और डिजिटल सामग्री के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इससे सीखना आसान, तेज और अधिक रोचक बन गया है। अभिभावक भी इससे बच्चों की पढ़ाई में एक सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। कक्षा 6 से ही हम बच्चों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, नई तकनीकें समझ आ रही है और भविष्य की तैयारी बेहतर हो रही है। विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ AI सीख रहे हैं। हमारे स्कूल में राखी मेकिंग प्रतियोगिता कराई गई। बच्चों ने रंग बिरंगी सुंदर राखियाँ बनाई और अपनी कला दिखाई। इस गतिविधि से बच्चों में रचनात्मकता और त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़ा है। विद्यालय में समय समय पर पूरे वर्ष करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट आकर बच्चों को क्लास 12 के बाद कोर्सेज के बारे में बताते हैं, नौकरियों के अवसर के बारे में बताते हैं, देश और विदेश में क्या अपॉर्चुनिटी है वो बताते हैं और बड़े आसान भाषा में समझाया गया। इससे विद्यार्थी को सही दिशा मिली और इसी का रिजल्ट है, आप देखेंगे स्क्रीन में, इसी का रिजल्ट है। हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी हमारा बच्चा हाल में प्रीतम, उसको 47.88 लाख का प्लेसमेंट मिला है, उसका सिलेक्शन हुआ है अमेजन में। तो जरा एक अमेजन में इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहूँगा जरूर जोरदार ताली इस बच्चे के लिए जरूर बजाएं, इसके माता पिता के लिए जरूर बजाएं। और भी जो बच्चे आप देख रहे हैं सभी बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं और ये आज कोई आर्मी में अफसर बन गए हैं, कोई एयरफोर्स में अफसर बन गए हैं और कोई MBBS जिन्होंने कर लिया है बच्चों ने, और कोई बच्चे लॉयर बन गए हैं, कोई बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। तो आप हमारे बच्चे जो हम करियर काउंसलिंग की लगातार क्लासेस दे रहे हैं उससे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो यहाँ प्रेमनगर में पर्वतीय कल्याण समिति में प्रेमनगर में एक लेक्चर कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया था और उसमें तमाम प्रतिष्ठित विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया था। लेकिन आप सभी को जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि उस प्रतियोगिता में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तीनों स्थान हमारे स्कूल के बच्चों ने प्राप्त किए। मैं चाहता हूँ आप तीनों स्थानों के लिए बच्चों के लिए जरूर ताली बजाएं। पहला स्थान हमारे विद्यालय के छात्र अक्षित कनवासी ने प्राप्त किया, सेकंड काजल राणा कक्षा 11 की छात्रा ने प्राप्त किया और थर्ड स्थान वैष्णवी राणा कक्षा 11 की छात्रा ने प्राप्त किया। और यही नहीं, सांत्वना पुरस्कार भी हमारे बच्चों को मिला। हर्षित फरसवान कक्षा 11 के छात्र को सांत्वना पुरस्कार मिला। तो बच्चों के लिए जरा जोरदार ताली जरूर बजाएं। हमारे विद्यार्थियों ने डॉल्फिन कॉलेज देहरादून में साइंस वर्किंग मॉडल प्रेजेंटेशन में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी बहुत तारीफ हुई और इससे बच्चों में रचनात्मकता की सोच और विज्ञान का कौशल बढ़ा है। हमारे विद्यार्थियों ने उत्तराखंड स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। हम बच्चों को स्किट प्रदर्शन सिखाते हैं। बच्चों ने नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तंबाकू से होने वाले दोष, इसी प्रकार के रोड सेफ्टी के बारे में स्किट का प्रदर्शन किया है और उसका रिजल्ट भी आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे। प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए हमने एक बहुत सुंदर प्ले ग्राउंड बनाया है। यहाँ बच्चे खेलकर बहुत खुश और आनंदित रहते हैं। बच्चे डेली स्कूल आने के लिए बोलते हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं का हमने एनुअल स्पोर्ट डे बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ बनाया। बच्चों ने खेलों में भाग लेकर जोश और आनंद दिखाया। विद्यालय में दिवाली सेलिब्रेशन के तहत रंगोली और दिया मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कला कौशल दिखाया और इससे उनकी कल्पना शक्ति और उत्साह बढ़ा है। हमारे विद्यार्थियों ने CBSE एजिंग विद डिग्निटी गतिविधि में भाग लिया और उनको प्रमाण पत्र मिले। इस कार्यक्रम से बच्चों में सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है। हमारे विद्यार्थियों ने CBSE सहोदय मॉडल यूनाइटेड नेशन गतिविधि में हिम ज्योति स्कूल देहरादून में भाग लिया और इस अनुभव से बच्चों में नेतृत्व, टीम वर्क और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। सेवा प्रोजेक्ट के अंदर हम सेवा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो CBSE के द्वारा चलाया जाता है। उसके तहत बच्चे घर में रोटी बनाते हैं और रोटी बैंक बनाया गया है। हम भूखे जानवरों को, पक्षियों को
स्ट्रीट एनिमल्स को रोटियां दे खिलाते हैं, बच्चे खिलाते हैं, टीचर भी हमारे साथ उसके साथ जाते हैं और उनको पानी देते हैं। इस गतिविधि से बच्चों में प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति करुणा का भाव जागृत हुआ है और जिम्मेदारी, दया और समाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार जो कि वेलम बॉयज स्कूल में आयोजित किया गया था, उसमें भाग लिया। उसमें उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के उच्च अधिकारियों से वार्ता की, उनसे बातचीत की, उनके अनुभव प्राप्त किए और इससे बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और सुरक्षा संबंधी ज्ञान का विस्तार हुआ है। विद्यालय में फायरलेस कुकिंग एक्टिविटी आयोजित की गई। बच्चों ने सुरक्षित तरीके से खाना बनाना सीखा। इससे उनकी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। विद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव उनके माता पिता की उपस्थिति में मनाया गया। बच्चों ने भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेकर धार्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक समझ बढ़ाई। विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे पेरेंट्स की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बच्चों ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे उनमें देशभक्ति और टीम वर्क की भावना बढ़ी है। मदर्स डे का सेलिब्रेशन का आयोजन विद्यालय में किया गया, जिसे सभी सम्मानित माताओं को आमंत्रित किया गया था। बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लेकर स्नेह, सम्मान और परिवार के प्रति भावनाएं बढ़ाई हैं। हमारे विद्यार्थियों ने नेगोटियम एगोन में भाग लिया, जो कि वाइनबर्ग आइलैंड मसूरी में आयोजित किया गया था। वहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ उनको सम्मानित किया गया। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है, नेतृत्व और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल बढ़ा है। आप देखेंगे हमारे विद्यालय में बच्चों को हम कई स्किल सिखा रहे हैं। बच्चों को बांसुरी सिखाई गई, बिगुल सिखाया गया, ट्रम्पेट सिखाया गया, तबला बजाना सिखाया गया, ढोलक बजाने की कक्षाएं दी गई। इससे बच्चों में संगीत कौशल बढ़ा है, एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ी है। अभी हाल में हमारे विद्यार्थियों ने CBSE सहोदय बचवाधुन फोक सॉन्ग कॉम्पिटिशन में भाग लिया। इसमें देहरादून के अनेकों प्रतिष्ठित विद्यालयों ने भाग लिया था। लेकिन आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि हमारे विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में 2nd स्थान प्राप्त किया। जरा इन विद्यार्थियों के लिए जरूर आप ताली बजाएं। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारे विद्यालय की छात्रा आरोही रावत कक्षा 10 की छात्रा ने 1600 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। काशिका स्कूल देहरादून में आयोजित सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता, शिक्षकों और स्कूल का नाम रोशन किया। 38वीं इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्वराज प्रताप सिंह कक्षा 12 के छात्र ने गोल्ड मेडल जीता। नरेंद्र निष्ठ कक्षा 12 के छात्र ने सिल्वर मेडल जीता। मोहित ने सिल्वर मेडल जीता और आयुष ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जब हम एनसीसी एक्टिविटी की बात करते हैं तो जिम्प पाइनियर स्कूल के एनसीसी कैडेट्स का 20 सर्टिफिकेट एग्जाम बड़ा शानदार रहा। 100% रिजल्ट रहा। सारे कैडेट्स के 90% से ऊपर मार्क्स आए। किसी के 96, 97 और 90% से मार्क्स इसके कम नहीं है। हमारे 33 कैडेट्स में से 29 कैडेट्स ने अल्फा ग्रेडिंग प्राप्त की, जो कि एनसीसी में सबसे ऊंची ग्रेडिंग है। हमारे 2 एनसीसी कैडेट्स का चयन रिवर राफ्टिंग कोर्स में हुआ। पूरे देहरादून में 552 कैडेट्स में से केवल 7 कैडेट्स का चयन हुआ, जिसमें हमारे कैडेट्स सीनियर अंडर ऑफिसर सौरभ और अंडर ऑफिसर धीरज शामिल हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए विशेष गौरव की बात है। अगस्त के महीने में हमारे 3 कैडेट्स का चयन आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए हुआ, जो 22 राजस्थान राइफल के अंतर्गत आयोजित हुआ। कैडेट्स अक्षित कनवासी, आयुष चंद्रा और चंद्रमोहन ने 10 दिन कैंप में रहकर आर्मी के विभिन्न पहलुओं और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। नवंबर और दिसंबर में आयोजित ATC कैंप में हमारे 2 कैडेट्स प्रियांशु कुमार और संजय सिंह ने इंटर कंपनी ड्रिल प्रतियोगिता में अपनी कंपनी को जीत दिलाकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो आप सभी बच्चे जरूर ताली बजाएं। 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। अभी हाल में हमारे विद्यालय को ग्लोबल
एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ और यह गौरव हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, उनके संबल स्वरूप अभिभावकों और निष्ठावान गुरुओं की सामूहिक साधना का दिव्य प्रतिफल है। सुभारती ग्रुप द्वारा हमारे विद्यालय को देवभूमि गौरव सम्मान 2025 प्राप्त हुआ। ये सम्मान डॉक्टर अतुल कृष्णन, जो कि सुभारती ग्रुप के संस्थापक हैं, उनके द्वारा प्रदान किया गया और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। चरित्र निर्माण सम्मान हमारे विद्यालय को प्रदान किया गया, यह भी सुभारती ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया। इसके लिए आप सभी, यह सम्मान केवल चिंपू पांजर स्कूल का सम्मान नहीं है, सभी बच्चों का सम्मान है, सभी अभिभावकों का सम्मान है और सभी टीचर्स का सम्मान है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि प्रद्युमन रावत जी पहुंच चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप उनके सम्मान में जरा खड़े हो जाएं। प्रद्युमन रावत जी, आप डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनके साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, श्री नवीन जोशी जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है सर। At last but not the least, when I talk about academic triumph of Jim Pioneer School students who ascend to the pinnacles of medical, engineering, law, hospitality and chartered accountancy, while concurrently donning the uniforms of officers in the esteemed Army, Air Force and paramilitary forces, awoke immense jubilation and pride among all stakeholders. Their accomplishments stand as a testament to the school's commitment of excellence and the nurturing of multifaceted talent. Thank you very much. God bless you all. On behalf of Jim Pioneer School, we extend a very warm welcome to our esteemed chief guest, Mr. Pradyuman Rawat, Deputy State Project Director of Samagra Shiksha, which is handled by Government of Uttarakhand. प्रद्युमन जी परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा, जिसका संचालन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाता है, का हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 26 वर्षों से उत्कृष्ट सेवा दी है। उन्होंने भौतिक विज्ञान में MSc और M.Ed दोनों की उपाधि प्राप्त की है। वह पिछले 19 वर्षों से उत्तराखंड सरकार से साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा प्रोजेक्ट की योजना को प्रशासन शाखा में कार्य करता है।
On behalf of Jimpana School, we extend a very warm welcome to our esteemed chief guest, Mr. Pradyuman Rawa, Deputy State Project Director of Samagra Shiksha, which is handled by Government of Uttarakhand. He has been gloriously serving in the field of education from last 26 years. He has accomplished with an MSc in Physics and AMID. He has been associate with Government of Uttarakhand for the last 19 years, is currently serving in Planning and Administration wing Shiksha Project of Uttarakhand. As our principal sir always say, this whole life is a learning process. Our chief guest, Mr. Pradyuman Rawat, has proved and actually lived this statement as he has visited some countries, namely Finland, Switzerland, France and Netherlands, to get training and polish his skills and challenge more and more to serve the society in the best way he can. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and sparing time from your busy schedule for this celebration, which would be incomplete without your presence. Thanks for adding more value to this function. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampadam Shatru buddhi vinashaya deep jyoti namastute. Respecting the Indian traditions, we are going to start our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thoughts and enlightenment. It's our honor to invite our respected principal sir, Dr. Jagdish Pandey sir, and guest of honor for lamp lighting ceremony. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhi vinashaya deepajyoti namostute divya नमस्कार सर्वदेव देवतां पाशी ये ग लक्ष्मी पैस बाजे माझं घर तुला साजे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे. To knowledge, harmony and progresses. Let's start the tonight journey filled with emotion. Now we'd like to call upon the stage the little toddlers Yashashwini and Kavya of class first come upon the stage and share their views on Rama Utsav. रामोत्सव के इस पुण्य अवसर पर आप सभी का हार्दिक सादर एवं अभिनंदन पूर्वक स्वागत है. प्रभु श्री राम की पावन कथा पारिवारिक सौहार्द की अमृत धारा है. यह एकात्मकता, परस्पर विश्वास और अटूट प्रेम की वह गाथा है जहाँ कुलवंश के आंगन में खड़ा बुजुर्ग रूपी कल्प वृक्ष यदि सुरक्षित है तो उससे अधिक आनंदित, धन्य और संपन्न कोई परिवार इस धरा पर नहीं. जहाँ बड़े पूजे जाए वहाँ संकट मुंह मोड़ कर भागते हैं. प्रभु श्री राम के चरित्र का यह संदेश किसी दीप शिखा की तरह स्पष्ट है कि यदि परिवार में
एक मंत्रा का विश्व बुद्धि का बीज पड़ जाए तो फूटी कौड़ी का सुख भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। और यदि उसी परिवार में एक राम उदय हो जाए तो अंधियारे में सूरज फूट पड़ता है और घर आंगन में सुख समरसता और मंगल की वर्षा होने लगती है। अतः यह परमावश्यक संख्या है कि परिवार ये समझे कि घर बचाना घर बनाने से कठिन होता है और इसके लिए गृहस्थी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर सावधान दृष्टि रखना अनिवार्य है। घर में काम करने वाले, बिजनेस में साथ देने वाले, गाड़ी चलाने वाले चालक, माली, प्रबंधक, कैशियर, ये सभी प्रकार की नींव में लगी ईंटों की भांति है। यदि इन ईंटों में दरार आ जाए तो महल भी पत्तों की तरह बिखरते देर नहीं लगती। इसीलिए सतर्क रहें, सजग रहें और परिवार की मर्यादा नामक दीपक को सदैव जलाए रखें। यही श्री राम की वाणी का सार है, यही जीवन का आधार है। Thank you, Yashaswini and Kavya. Now we move to a performance that beautifully to take their position. Dear audience, please join us in welcoming them as they present this remarkable act for you. Please give a big round of applause for them. Give a huge round of applause for them. It's time for Prince Tripathi from class 6 to grace the stage and ignite our minds by sharing some valuable insights on Lord Rama.
भारत का दिव्य सौभाग्य था कि स्वयं धर्म मूर्ति लोकनायक श्री राम उनके घर में अवतीर्ण हुए। राम का अवतरण वहीं संभव था जहां दशरथ जैसा आत्मसंयमी शौर्यधारी 10 इंद्रिय विजेता पुरुष जन्मा हो। जब मनुष्य अपने पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण अंकुश स्थापित कर ले, तभी ऐसे ग्रह में राम तुल्य तेजस्वी संतति अवतीर्ण होता है। राम ने हमें अदम्य आत्मविश्वास सिखाया है कि एक निष्कासित युवराज जिसके पीछे ना पिता की सत्ता और ना राज्य का वैभव, केवल इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा और निजी दृढ़ता, वही विश्व विजय कर दीपोत्सव के दिन अयोध्या लौटता है। और सीता विश्व के सबसे समर्थवान, स्वर्ण, समृद्ध और अहंकार ग्रस्त पुरुष के प्रणय प्रस्ताव को अपनी नारी सुचिता के समझ ठुकरा देने का जो साहस जननी जानकी ने दिखाया, उसी ने भारतीय नारी की गरिमा को अमर कर दिया। आज प्रत्येक ग्रह में, प्रत्येक परिवार में नारी शक्ति का वंदन इसलिए है क्योंकि घर की दूरी, घर की गमन शक्ति, घर की प्रकाश रेखा नारी ही है और नारी शक्ति से ही घर चलता है, परिवार चलता है और देश संचालित होता है। अवध में राम मंगल गौरी।
display of talent. Please join me giving these brilliant students a big round of applause for such an impressive performance. Let's call our tiny speakers on stage, Avya, Deepika and Shivanshika, who will tell us something about Rama Utsav. अपनी बेटियों को यह संस्कार दे कि जिस घर में वह जाए वहाँ की माँ भी उनकी अपनी ही माँ है, और यदि पिता अपने बेटों को यह सीख दे कि जिस बेटी ने इस घर पर कदम रखा है उसका अधिकार भी उतना ही जितना तुम्हारा, तो ऐसा घर सचमुच अयोध्या बन जाता है। अगुओं का बड़ा महत्व है। जहाँ बुजुर्गों की इज्जत होती है वह घर चार चांद लगा देता है। अगर पूरी वानर सेना सिर्फ युवाओं से भरी होती और जामवंत जैसा अनुभवी वहां ना होता तो क्या समुद्र पार हो पाता? शायद नहीं। जामवंत भी जानते थे कि यह कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चुप साधी रहे बलवाना, यानी अपनी ताकत मत भूलो। इसीलिए हर घर में एक जामवंत, एक समझदार बुजुर्ग बहुत जरूरी है, जो समय पर कंधे पर हाथ रखकर कह दे, जाओ बेटा, तुम में दम है, तुम कर सकते हो। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्ग घर का साया होता है। यदि चाहते हो कि आपका बेटा आपकी इज्जत करे तो पहले अपने पिता का आदर करो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि चाहते हो कि आपकी बेटियां उनके नए घर में जाकर उन्हें मान सम्मान और स्नेह मिले तो अपनी बहू को भी वही आदर और प्रेम दो। घर वही बसता है जहां दिलों में अपनापन होता है। बाकी सब रघुनाथ जी पर छोड़ दो। Dear audience, the next segment of our Rama Utsav brings to life the sacred journey of Sri Ram's Vanvas. We now invite the talented students of class 2nd, 8th, 9th and 10th to come on stage. Each class will showcase a beautiful part of the Vanvas chapter, an archery of Rama, filled with innocence, devotion and courage. Let's welcome all of our performers with a big, warm and heartfelt round of applause.
के रूप में निर्बलों को यहां बुलाकर अपनी हंसी कराई है। धनुष उठाने को कौन कहे? कोई उसे तिल भर भी हटा ना सका। आज मुझे मालूम हुआ कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब आप लोग अपने अपने घर पधारे। मेरी सीता कुंवारी रही और आज से आप लोग अपने आप को शूरवीर योद्धा समझने की भूल न करें। मिथिलेश्वर, अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों? आपने श्री रामचंद्र के समुद्र जैसे विशाल पौरुष को नहीं समझा। यदि उन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिले तो वो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं, पर्वतों को एक ही ठोकर से चूर चूर कर सकते हैं और इस धनुष को वो कमल के डंठल की तरह टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लक्ष्मण, राम, महाराज जनक बहुत निराश हो चुके हैं। धनुष तोड़कर उनका दुख दूर करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। धनुष भंग सुनकर तड़पाए, विकराल वेश सती किसने धन तोड़ा जनक मुझे बतलाओ, अपराध किया है जिसने उसको लाओ। टूटा धनुष स्पर्श से नहीं राम का दोष, मुनिवर बिन कारण ही क्यों करते हो रोष। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घातक। तुम ही लागत जो यह प्यारा, बदला देहु पर को प्रमाण। वीर नहीं अपना बल गाते, करना है करके दिखलाते। यह सुनकर तिरछा किया, मुनि ने कठिन उठा, रंग भूख में बच गया। आप कृपाल महाज्ञानी, गुणशील महान क्षमादानी, बालक अज्ञानी मत कोप करे, दया करे प्रभु दया करे। तेरी बातें इसकी बोली कड़वी तीखी, या तो कर संग्राम अभी, या त्याग राम का नाम कभी। मैं राम, आप हैं परशुराम, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। रघुवंशी हैं हम, महाकाल से भी हम टकराते हैं। कृपा आपकी मिले हमें, हम तनिक नहीं भय खाते हैं। गूढ़ वचन सुन राम के
के साथ। त्रेता युग यदि तब अवतारा, चांपो धनुष हो हर्ष अपारा।